In today's fast-moving world, mental health challenges among young people are rising silently. Behind many smiles are untold struggles, stress, anxiety, loneliness, and emotional pain that often go unnoticed. But sometimes, a small conversation, a caring teacher, or a timely intervention can save a life. With this belief, Samvedna was initiated as a collective effort to strengthen awareness, empathy, and early mental health intervention among youth and educators. Jointly organized by the Institute of Human Behavior and Allied Sciences, Indian Council of Medical Research, and Vishwa Yuva Kendra, the initiative brought together mental health experts, educators, administrators, and youth leaders on one platform. The program focused on understanding suicide risk, recognizing warning signs, crisis response, communication skills, and creating emotionally safe spaces for young minds. More than 500 teachers from schools and colleges across East Delhi participated with a shared commitment to become not just educators, but sensitive listeners and first responders for students in need. विश्व युवा केंद्र, इभास और आईसीएमआर की पूरी टीम की तरफ से हमारे जितने भी गणमान्य अतिथि हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आज हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है आज हम वो सीखेंगे, क्योंकि ये आज भी एक टैबू की तरह है और कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता। जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने मन की बात रखकर देशवासियों तक पहुँचाते हैं, तो क्या हमारे पास वो एक स्कोप है जब संसद में एक बजट में बात होती है कि हमें मेंटल हेल्थ पे बात करने की ज़रूरत है, तब ऐसे कार्यक्रम निखर के संवर के सामने आते हैं। और इसी कार्यक्रम की रूपरेखा जब इभास ने, आईसीएमआर ने और विश्व युवा केंद्र ने सजाई है, तो संवेदना है क्या, संवेदना से हम क्या समझना चाहते हैं और हम टीचर्स का कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हम कैसे अपने भविष्य को निखार सकते हैं, उसके बारे में मेरे साथी ललित जी आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटा सा बैकग्राउंड, और फिर हम अपने सारे गणमान्य अतिथियों को, अपने डिग्निटरीज को सुनेंगे। Today we have not gathered here merely for another program or another seminar or another just a lecture on mental health, but rather we are here because somewhere silently countless children, countless youth, young minds are struggling between what the world sees and what they actually feel within. And there can be nobody else better than you guys, because you are the change makers, you are the foot on the grounds, who can see that, who can observe that. That is why Samvedna 26 is very important, because the solution is not always complicated, dear teachers. Sometimes the greatest intervention is empathy, a patient ear, a safe space, a compassionate conversation. बच्चा एक बार बाहर निकल रहा है, बच्चे आज ठीक नहीं लग रहे हो, शायद वो एक statement can be life changing for a student. So there have been countless instances where the simple interplay of sympathy and empathy completely changed the outcome of somebody's life, because the collective experience present in this whole is extraordinary. The dignitaries which are sitting beside me, if I count a collective experience of them, it will be more than 100 years. That is simply amazing. But if I talk about you people, you have stories, you have experiences of thousands and thousands of years collective, and thus we are here gathered to find a collective solution to it and to discuss about mental health of students, of school and college going children. And if through Samvedna 26 even one teacher becomes today more emotionally aware, even one student gathers the courage to seek help, even one institution becomes a safer emotional space, then every effort behind this initiative for VYK team, for IBHAS team and ICMR's representative, it will be a success story, because sometimes it simply begins with Samvedna, Samanubhuti, Sahanubhuti, and that's all. अगर किसी बच्चे में कोई रेड फ्लैग है, कोई बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है या क्लास में कोने में बैठा है या इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या रुचि नहीं ले रहा है या इंटरेक्ट नहीं कर रहा है दूसरे बच्चों से, सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं है, तो उस बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे जो है उसकी सहायता की जाए, प्रोफेशनल हेल्प ली जाए या उसके पेरेंट्स को बताया जाए या टीचर्स उसमें काउंसलिंग करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स का रोल, क्योंकि आप लोग इतना समय बिताते हैं स्टूडेंट्स के साथ, आपको स्टूडेंट्स की हर एक्टिविटी का पता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे किस लेवल पे आए हैं, बच्चे का जो इंटरेस्ट किस में है, किस में नहीं है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, उनकी इंटरेस्ट है अपने आप कितना आगे बढ़ के वो आगे आ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों का आप सबको पता रहता है क्योंकि आप उनके टीचर्स हैं, गुरु हैं, और आपकी ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है बच्चों को कैसे ऐसे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करके अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं। जो हमने स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया पिछले 3 सालों में, दिल्ली के 30 गवर्नमेंट स्कूलों में हमने ये प्रोग्राम चलाया, जो इभास का इनिशिएटिव था कि स्कूलों में जाके हम काउंसलर्स प्रोवाइड करें और काउंसलिंग में के माध्यम से हम बच्चों की स्क्रीनिंग करें। तो स्क्रीनिंग के बाद हमने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और इस कार्यशाला का बहुत जो है उससे रेलेवेंस है। हमें 2 बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट मिले। एक बैरियर तो पेरेंट्स का मिला कि बच्चों को अगर बता भी दिया पेरेंट्स को कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की और वो आगे बढ़कर नहीं आए, और शायद इस स्टिग्मा की वजह से कि बच्चे को जो है आइसोलेशन ना हो या बच्चे को अलग से ना हो, तो वो पेरेंट्स की टीचिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि टीचर्स का भी एक रेजिस्टेंस है। टीचर्स भी इतना खुल के बात नहीं करना चाहते हैं बच्चों के बारे में, खासकर उन बच्चों के बारे में जिनको थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो बुलिंग की प्रॉब्लम हो, स्कूलों में बड़ी कॉमन है बुलिंग की प्रॉब्लम, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, चाहे वो सोशल मीडिया का प्रेशर हो। इतनी सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स को भी आगे आने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कार्यशाला के बाद ये जो रेजिस्टेंस हमने देखा, ये जो इनिशिएटिव ना लेने की जो हमें नज़र आया, तो वो आज के बाद हमें लगेगा कि इस कार्यशाला के बाद टीचर्स भी आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बच्चों के भविष्य में अपना जो योगदान दे रहे हैं और अच्छा दे पाएंगे उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। हर एक तरह का वर्कशॉप और सेमिनार्स होता है, लेकिन उसके बाद एक्शन एजेंडा क्या है, उसके बाद हम बच्चों के बीच करते क्या हैं, उसके बाद हमारा फॉलो अप प्रोग्राम क्या है। हम आपके स्कूल तक पहुंचना चाहेंगे कि हम लोग सभी लोग मिलकर हर एक स्कूल पहुंचें, एक छोटे छोटे एक्शन एजेंडा बनाएं और फिर साल भर के बाद इसी तरह का फिर से आयोजन करें कि हमने वर्ष भर में किया क्या। अगर एक दिन का आयोजन है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम मंथली बेसिस से, क्वार्टरली बेसिस से उसका रिव्यू करते हैं, उसको कुछ समझते हैं, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से हम बात करेंगे, तब लगेगा इतने जो लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है उसका एक कुछ न कुछ परिणाम निकला, और जब परिणाम निकलेगा तो उस पर हम लोग एक्शन ले सकेंगे और हर एक बच्चा हमारा खुश हो, हर एक युवा हमारा हैप्पी हो। आज हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर भारत पीछे है तो बहुत चिंता का विषय है। भारत तो हमेशा, चाहे हम आर्यावर्त की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, अगर सबसे ज्यादा खुशहाल इंसान कहीं का रहा है तो भारत का रहा है। लेकिन क्या ऐसी चीजें आई है कि आज हमको ये सोचना पड़ रहा है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे हैं? मुझे लगता है इसको यदि कोई दूर कर सकता है तो जो डेवलपमेंट के की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एकेडमिशियंस हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे कॉरपोरेट्स हों, चाहे गवर्नमेंट एंटिटी हों। जब हम 5 होते हैं तो केवल उंगली होते हैं, जब हम एक साथ होते हैं तो हम एक मुट्ठी होते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ें, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ बढ़ें, एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के साथ बढ़ें और कुछ ऐसा एक्शन एजेंडा तैयार करें कि अगले बार जब हम मान्य अतिथियों को ये एजेंडा दे सकें तो उनको लगे कि उनका समय जाया नहीं गया था, बल्कि एक ऐसे जागरूक इंसान के साथ इन्होंने विचार विमर्श किया जिन्होंने इस बैटन को लिया। तो गवर्नमेंट बहुत हमारा मजबूत है, बहुत तरह के वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन उसको घर घर तक कौन पहुंचाएगा? यदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मजबूत होगा हम वहां पिछड़ जाएंगे, यदि हमारे कॉरपोरेट्स के तरफ से नहीं उसकी पहल होगी हम पिछड़ जाएंगे। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर हमारे शिक्षक वृंद जो कि मर्म समझते हैं, पल समझते हैं, एक बच्चा क्यों आज गुमसुम बैठा हुआ है उससे ज़्यादा माता पिता से भी ज़्यादा शिक्षक समझ सकते हैं। एक बच्चा आज क्यों ज़्यादा हाइपर हो रहा है वो भी एक शिक्षक समझ सकते हैं। एक बच्चा बिल्कुल स्कूल तो आता है लेकिन एकदम जवाब नहीं देता, वो क्यों ऐसा हो गया, उससे ज़्यादा शिक्षक से ज़्यादा कोई नहीं समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ज्ञानी गुणी ही नहीं हैं, आप ज्ञान के खान हैं। जिस तरह से आपके बच्चे उसी तरह के पूरे समाज के बच्चे, यदि ये भावना लेकर हम स्कूल में जाएंगे, कोई भी बच्चा किसी तरह के सौरों में नहीं रहेगा। और हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात जब 2 वर्ष 4 वर्ष बात करेंगे तो हर चेहरे पर एक मुस्कान ही रहेगी, खुशियां ही रहेगी। ऐसा एक हमको वातावरण बनाना है। जो आज हमारे बच्चे हैं वही हमारे साथ आगे खड़े होंगे आज से 10 साल बाद। अगर हमने उनकी मेंटल हेल्थ का आज के दिन पे ध्यान नहीं रखा
तो वो एक दूसरे एलिमेंट्स की तरफ, एंटी सोशल लेवल की तरफ चले जाएंगे, जिससे उनको वापस निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि गवर्नमेंट उसकी तरफ भी प्रयास बहुत कर रही है। जो ये एक इनिशिएटिव है, एक ICMR प्रोजेक्ट इभास के साथ जो मेंटल वेलबींग पे इतना काम कर रहे हैं, इन्होंने OPD प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, सारा प्रिवेंटिव है। बट इसके बाद भी गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो बच्चे नशे की आदत पड़ जाती है या उनका कोई साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसके लिए भी उन्होंने जगह जगह डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने का प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट का काफ़ी कुछ इसके पीछे एफर्ट है। मेरे आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि एज टीचर्स यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट fulcrum, I should say the nodal, of looking after that child in your class who is having an unusual behavior. If that child has got some suicidal tendency, you are the first person who can know about it. And if supposing this child goes towards that, just imagine the loss of the family and the parents. इनको पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे के संग ऐसा क्यों हुआ. Recently, there was a doctor in our for this thing. She lost her 21-year-old daughter because of suicide. Being a doctor, even they could not identify what was the reason, but they damaged the entire family structure. So ये चीज़ें हमारे अगर शुरू में ही अर्ली वार्निंग साइंस हमारे टीचर्स या जो मेंटर्स हैं जो उन बच्चों के साथ हैं वो डिटेक्ट कर लें और उसको आगे कम्युनिकेट करें राइट प्लेटफॉर्म पे, इफ़ इट्स रिक्वायर्ड अ काउंसलर और इफ इट्स रिक्वायर्ड द पेरेंट्स, then it will make a difference in the long run. We all have to move together in the society to improve the society for the benefit of our future generation. And that is the vision of our Honorable Health Minister and our Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you so much. आप एक समझ के देखें कि एक बच्चा इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले उसके दिमाग में कब शुरू हुआ, कब उसने सोचा, कब अटेम्प्ट किया. तो ऐसा तो ये कोई एक्यूट इलनेस तो है नहीं कि डायरिया हो गया, बुखार हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया और हो गई ये इवेंट. बट इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स टू कम. उस चीज़ को असेस करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं. एक क्वेश्चनेयर होता है, ठीक है, बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं. लेकिन मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगी जो आई थिंक डॉक्टर वत्सला ने भी कहा कि टीचर और पेरेंट, उनको किसी क्वेश्चनेयर की ज़रूरत नहीं है बच्चे को देखने के लिए कि वो कैसे बिहेव कर रहा है. उनका आंखें, उनका बिहेवियर, उनका आना जाना, उनका एटीट्यूड, उनकी परफॉर्मेंस, सडन चेंज इन इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. उनको किसी टूल की आवश्यकता नहीं है ये देने के लिए कि इसका स्कोर इतना आया है तो इसको हमको रेफ़र करना है. ऐसा नहीं है. बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस माध्यम से मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके, अगर आपको कहीं ना कहीं किसी बच्चे में अनयूजुअल पैटर्न नज़र आता है, समझ आता है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसके पेरेंट को बताइए, क्योंकि वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स. वी लाइक टू डिस्कस थिंग्स विद आवर कलीग्स. हो सकता है आपके कलीग उस बात को कैसे लेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे. सो आई थिंक मैटर इज़ अ स्नोबॉलिंग. एक को कहा, दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस बच्चे के बारे में या उस समाज के बारे में, मतलब उसको कैसा लगेगा कि उसको किसी थर्ड पर्सन से पता लगे कि ये 4 टीचर मेरे बारे में बात कर रहे हैं. सो वो पिन पॉइंटिंग करना कि ये मतलब आपस में, तो दैट ऑल्सो इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी विच ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लोजली. Lastly, it is not only for suicide prevention, it is overall mental well-being. And definitely ये आपको मतलब लगता होगा कि जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम आता है या कुछ और इस तरह के कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को दे नीड मोर एंड मोर कंसोलिंग एंड दे नीड मोर एंड मोर स्ट्रैटेजी टू बी अडॉप्टेड. So at that time we need to have little bit more careful that they are performing or they are okay, they are happy, they are well-being, they are not overstressed, and they are not doing any unusual kind of a behavior which can lead to any kind of a step which will definitely may not affect any other mother, but it will affect the parent of that kid. आप इसको अपनी एक दिनचर्या बना लें कि हमको आपस में मिलके इस बात में विषय पे बात करनी है, चर्चा करनी है, PTM में बात करनी है, so that we make every child whosoever comes in our contact makes us
happy and them happy also. हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे तक पहुंचा जाए और कोई भी बच्चा जो है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी टेंडेंसी आती है या कोई मेंटल हेल्थ का इशू आता है तो आप उसको शुरू में ही पहचान सकें और उसको कैसे पहचानना है, उसके क्या डेंजर सिग्नल्स हैं, उसके लिए आपको आज यहाँ पर बुलाया गया है। जो हमारे स्कूलों में बच्चे हैं, यदि मान लो एक विद्यालय से हमारे 1 या 2 टीचर यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे 2000 बच्चों तक आप पहुँच पा रहे हैं। ये प्रोग्राम 2000 बच्चों तक पहुँच पा रहा है। और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा प्रसन्न रहें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आजकल माँ बाप की भी हो गई है कि बहुत अच्छे नंबर लेके आए, साइंस ही पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर ही बने, और जिन बच्चों के नंबर कम है वो भी कोशिश करते हैं माँ बाप की नहीं ज़बरदस्ती इसको साइंस दिला दी जाए। तो वहाँ पर भी आपका ये रोल आता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अनोखा व्यक्ति होता है, उसकी अपनी योग्यताएं होती हैं, वे अपना जीवन यापन अपनी योग्यताओं के अनुसार भली प्रकार से कर सकता है। यदि हम जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास धन के साधन सीमित हैं, हम एक छोटी गाड़ी ले सकते हैं, तो हमें बहुत बड़ी गाड़ी की कामना नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी गाड़ी, फिर और बड़ी गाड़ी, फिर और बड़ी गाड़ी, फिर और बड़ा घर, इसका कोई अंत नहीं है। और यही फिर हमारे लिए हमारी जो हैप्पीनेस है उसमें बाधा बनता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें कैसे और बेहतर किया जा सकता है और साथ साथ उसके लिए हमें प्रयासरत भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी ये कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए ऐसे अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हमारे अध्यापकों का, हमारा और शिक्षा विभाग दिल्ली का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। This is a one-day workshop, but when we planned for this, we have some issues to conduct it in the IVAS, and when we planned, we thought about VYK, and to come to VYK, we take help of Himanshu sir. So he is the liaising between me and VYK, and after coming here, the one thing Uday sir has told me that you take care of the technical session, rest we will manage. As we move forward, I am confident that today's learning, after all the sessions, you will take not something, many things with you. And that is the motto of this workshop. Special acknowledgement to all of you, to all the participants who came a long way to attend this workshop. Thank you. The sessions reminded us that mental health is not a personal issue alone, it is a collective social responsibility. Samvedna is not just a program. It is a step towards building a more aware, supportive, and compassionate society. Because every young life matters. And sometimes, a small conversation can save a life.